Hello students and the viewers. Today onwards, once again we are going to proceed towards English grammar passive voice. Okay, today our topic is passive voice, how to use passive voice. Just I would like to request the new, those who are watching my videos, those who are new in my channel, so they should, first of all I would request you to subscribe my channel. Okay, that channel is KCC English Education. So I would request you all, those who are new, because you will get a lot of things, how to use English grammar. Okay, especially today's as our topic is your passive voice, how to use passive voice. Okay, passive is treated as impressive English. So in our previous videos, so many videos are there. In the previous videos I taught you all your tenses, the uses of all the tenses, the uses of modals. But today our topic is passive, how to use passive. Passive is treated as impressive. Why? Let us see this. First of all, we should understand what is passive. Passive is an expression that we give our expression. We use a subject, then main verb, then object. In British English, in English it is there. Subject, verb, object. The sentence framing process. Subject, verb, object. So commonly what we do, we use subject. I, we, you, he, she, it, they, these are subjects. Any noun, nouns, 5 types of nouns are there, all of them are subjects. ये सारे subject है. तो इसके तुरंत बाद क्या होता है, एक verb यूज करते हैं हम इंग्लिश में. That verb is called a finite verb. इसे हम finite verb कहते हैं. Okay, thereafter an object. If object is there, remember, if object is there, then only we can convert into passive. एंड उसी जब जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस. ओके, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटोरी, कि ऑब्जेक्ट मैंडेटोरी है ऐसा कोई बात नहीं है, बट वर्ब इज मैंडेटोरी. ओके, वर्ब इज कंपल्सरी. विदाउट ए फाइनाइट वर्ब वी कैनॉट फॉर्म ए सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस ए वर्ब. इफ ऑब्जेक्ट इज देयर, दैट सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब सेंटेंस एंड वी कैन कन्वर्ट इनटू पैसिव. एंड 8 टाइप्स ऑफ पैसिव्स आर देयर. 3 present, simple present, present continuous, present perfect. 3 past, simple past, past continuous, past perfect. And 2 future, simple future and future perfect. Total 8 passives are there. And remember, all these passives are possible if the sentence is transitive verb sentence. Means objects are there. Remember. Okay, objects are there. Sometimes we get single object. Sometimes we get double objects in a sentence. Now question comes, how can we get to know? हमें पता कैसे चलेगा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं? हमें we have the ways, तरीका है, हमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, इसे समझने के लिए हमारे पास तरीका है. क्या करेंगे हम? जैसे आई राइट ए लेटर, तो आई राइट अ लेटर, आई राइट व्हाट. तो अगर हम व्हाट क्वेश्चन पुट करते हैं, जवाब मिल जाता है, तो then it is called object. That answer is your object. I write what? Answer is a letter. So letter is object. We play cricket. We play cricket. We play what? Answer is cricket. तो cricket is object. तो what question put करने से हमें object मिल गया. हम we know this. ठीक है. And what is another one? 2 objects are there. I told you. दूसरे object क्या है? दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं, दैट इज प्राइमरी ऑब्जेक्ट. दिस प्राइमरी ऑब्जेक्ट कम्स इफ वी पुट ए क्वेश्चन टू हुम, व्हाट एंड टू हुम. दिस 2 WH फैमिली क्वेश्चंस कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट्स. हम ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. ब्लाइंडली वी कैनॉट फाइंड आउट इन सेंटेंस. तो ए सेंटेंस इज देयर, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग इन द पार्क. अब सोचोगे वेयर इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट इज नील. Park is not your object. The children are playing cricket in the park, so cricket is your object. The children are playing what? Cricket. Okay. So now question comes, we got to know कि if we put question what, then we get an object. That is non-living mostly. To whom? Whom. तो whom में जो question होता है उसमें हमें living being मिलता है. Okay. The teacher teaches us English. The teacher teaches us. Us मतलब हमें. तो टीचर टीचर्स टू हुम. टू हुम किसको? तो इसका जवाब है हमें. तो
ये है प्राइमरी ऑब्जेक्ट। इसी रेंज में और भी आता है मी, हिम, हर, द चिल्ड्रेन, किसी का भी नाम आ सकता है। द टीचर टीचर्स हिम इंग्लिश, तो हिम अब प्राइमरी ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम पैसिव में सब्जेक्ट के प्लेस देंगे। ओके, 2 WS families are there, only what and to whom, you have to observe it. Rest of the WS families, when, where, how, so many WS families are there, they cannot bring the object, वो bring object नहीं ला सकते हैं। So that sentences, those sentences are called intransitive verb sentences। तो intransitive verb sentence में हमें पैसिव नहीं मिलता है। Now question comes, let us see one by one। simple present tense को हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल सब्जेक्ट और डबल सब्जेक्ट्स में भी देयर। ओके, जैसे कि सिंगल सब्जेक्ट में व्हाट एंड टू हुम पॉइंट ये करो, फिगर आउट करो। यू कैन पुट द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द मेन वर्ब, यू कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ सी द सेंटेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, रूल्स वी हैव टू, जैसे टेंस में आपने लर्न किए, यू लर्न ऑल द रूल्स ऑफ द टेंसेस, है ना। सो नाउ यू हैव टू लर्न द रूल्स ऑफ पैसिव, ये बहुत ज़रूरी है एंड इट इज़ कंपैरेटिवली ईजियर। टेंस में क्या होता है, देखो वी हैव, कोई भी फाइनाइट वर्ब को हम 5 फॉर्म्स में हमें मिलता है। आई गेट अप, गॉट अप, गेट्स अप, गेटिंग अप, सो 5 डिफरेंट वेज, गो, वेंट, गॉन, गोज, गोइंग। तो हमें टेंस के अनुसार हमें वो फॉर्म्स को सिलेक्ट करना होता है। कॉन्टिन्यूस टेंस तो ING लगाओ, पास्ट टेंस है सिंपल पास्ट तो सेकेंड फॉर्म लगाओ। ओके, परफेक्ट टेंसेस थर्ड फॉर्म लगाओ। तो ये जो वेरिएशंस है ये पैसिव में नहीं है। पैसिव ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब विल बी यूज्ड। हेल्पिंग वर्ब में वेरिएशंस है, एम, इज, आर, सिंपल प्रेजेंट, पैसिव रूल्स, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट। सी सिंपल प्रेजेंट पैसिव रूल्स, सब्जेक्ट प्लस एम / is / are plus MB3 plus object. MB3 is mandatory in all the passives. Remember, सारे पैसिव में हमें MB3 ही मिलेगा, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। सो इट इज़ इजी कंपैरेटिवली देखा जाए तो what we need to learn all the rules thoroughly, और where to, and we have to find out whether it is transitive or intransitive। हमें ट्रांजिटिव में ही केवल पॉसिबल है पैसिव बनाना। Okay, and passive sentences are always treated as impressive sentences. Okay, advanced English का part है passive, like your modals. So now you see, question is, you see observe the question, do you help your mom in the kitchen? मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया आपको, पूछा कि डू यू हेल्प योर मॉम इन द किचन, मम्मी को मदद करते हो। तो अगर हाँ में जवाब है तो आप हाँ में दोगे एक्टिव में, नहीं तो ना में जवाब हो तो नेगेटिव में नो बोलोगे। तो अगर एक्टिव में आपका आंसर है हाँ, तो क्या बोलोगे, यस आई हेल्प हर। मॉम को ये नाउन है, हमने प्रोनाउन में कन्वर्ट कर दिया, यस आई हेल्प हर, मैं उसे उनको मदद करता हूँ या करती हूँ, मैं उनको मदद करती हूँ इन द किचन। अच्छी बात है, मदद करते हो, ठीक है। अगर नहीं करते हो तो क्या बोलोगे, नो आई डोंट हेल्प हर, यही तो बोलोगे, नो आई डोंट हेल्प हर। नो, देखो नेगेटिव आंसर, नो आई डोंट हेल्प हर बट माई सिस्टर हेल्प्स, मेरा सिस्टर मदद करती है, मैं नहीं करता। तो ये जो लंबा कितने लेंदी सेंटेंसेस आपने लिखा, आई डोंट हेल्प, अगर नेगेटिव सेंटेंस है, आई डोंट हेल्प हर बट माई सिस्टर हेल्प्स इन द किचन, तो इससे अपना इंप्रेशन खराब होता है कि आप मम्मी को मदद नहीं करते हो। तो पैसिव इज द सॉल्यूशन। तो पैसिव कैसे सॉल्यूशन है, पैसिव ना को भी हम हाँ करते हैं। इफ द आंसर इज नो, सपोज आप करते नहीं हो, बट यू कैन गिव द स्मार्ट आंसर बाय सेइंग यस, आप नो नहीं करोगे बिकॉज यू नो पैसिव। तो इसका पैसिव में क्या आंसर होता है, देखो यस आप रियली आप मदद नहीं करते हो क्योंकि आप जानते नहीं हो किचन में जो भी करना, ना चाहो तो कर सकते हो लेकिन करते नहीं हो। एनीवे सिस्टर करती है। नाउ यू आर टेलिंग, आपने हाँ में जवाब दिया,
Yes. Do you help your mom in the kitchen? You know passive and you are very clever. अब चालाकी से जवाब दिया yes, she is helped. She is helped in bracket by my sister. So you are not telling the truth. But it is hidden. It is hidden. Okay, passive gives us that type of expressions कि हमें बहुत सारी चीज़ हम छुपा देते हैं. So this is a smart answer कि yes she is help. आपने नहीं बोला no I don't help her, my sister helps. क्यों बोले इतने सारे? ये हमें जवाब दो yes she is helped. तो yes she is helped in the kitchen. Okay, अगर सचमुच आप देते हो तब भी यही जवाब है. आप मदद करते हो यही जवाब है. If you even don't help then also you can give this answer. Yes she is helped. रियलिटी क्या है? बाय माई सिस्टर. Okay, in so many situations are there in our day-to-day life. The passive is shapes. Okay, so many situations. I'll let you know one by one. Here it is what? You don't want to tell the truth. सच नहीं बोलना चाहते हो. बोलने से क्या होगा? अपना थोड़ा सा ये लगता है कि देखो मम्मी को मदद नहीं करते हो, भाई को या किसी को मदद नहीं करते हो, वो करती है. तो better to use and it is shortcut also. She is helped. बस बात खत्म. Short and good, impressive. Okay, so many reasons are there that I'll let you know कि how many ways reasons are there we use passive voice. So many uses are there, so many reasons are there. Not only this, reporters they write the reports, they use the passive voice. Why? Because subject is not there, unknown. Subjects are there but the reporter doesn't know. कैसे करे? फिर object से sentence बनाओ. बन गया रिपोर्ट. दे डू इट. इफ यू गो थ्रू द न्यूज़पेपर यू डोंट फाइंड द सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के लिखा गया. दिस थिंग हैपेंस. सो मेनी रीजंस आर देयर. आई लेट यू नो वन बाय वन. सो देयर आफ्टर नेक्स्ट कम्स आवर दिस इज योर सिंपल प्रेजेंट पैसिव. आई थिंक यू गॉट इट. इट्स ओके. देन डबल ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो देयर बट हियर इट इज वन ऑब्जेक्ट. व्हाट इज दैट? डू यू हेल्प योर मॉम. तो डू यू हेल्प टू हुम? यहाँ पे आई फॉरगॉट टू टेल यू, ये टू हुम का जवाब है. डू यू हेल्प टू हुम? मॉम. तो मॉम को कन्वर्ट कर दिया हमने शी में. यस शी इज हेल्प्ड. ओके. सो नेगेटिव आंसर इवन नेगेटिव, इफ द आंसर इवन नेगेटिव दैट यू कैन कन्वर्ट इनटू positive in passive voice. So that is the importance of passive. I think you got it. Okay, thank you.